तो चलिए, we are trying to go live here. So today we shall talk about academic writing और उसकी प्रोसेस के ऊपर, प्रोसेस ऑफ academic writing के ऊपर बात करेंगे. प्रोसेस राइटिंग के ऊपर बात करेंगे. तो प्रोसेस ऑफ लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि 3 स्टेप्स उसके अंदर थे, जो मेन चीजें हैं उसके अंदर 3 या 4 है हमारे पास. एक आ जाता है प्री ड्राफ्टिंग, एक आ जाता है ड्राफ्टिंग, फिर आ जाती है रिवीजन या रिवाइजिंग और एडिटिंग. तो ये 4 बेसिक स्टेप्स हैं ड्राफ्टिंग के. ड्राफ्टिंग का मतलब होता है राइटिंग. ये हमने कल भी बात की थी. ड्राफ्टिंग इज राइटिंग. तो प्री ड्राफ्टिंग का मतलब हो गया द एक्टिविटीज दैट वी हैव टू डू बिफोर राइटिंग समथिंग. और यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू राइट इन एकेडमिक सिनेरियो, इन एन एकेडमिक सिचुएशन. Drafting simply means the actual process of writing. Revising means when we revise what we have written. We revise the content or we delete some content. Whatever we have written, we sort of reread it, then we rewrite it. And editing is when the writing process is final. After that, we do editing. Editing may the draft is ready, but it needs corrections like grammatical corrections or improvements related to grammar, improvements related to language, and language related conventions that need to be inserted. इतनी बात क्लियर थी? कल ये लेक्चर हुआ था, डिस्कस हुआ था ये सारी. हाँ जी, इतना क्लियर है? आगे चलूं? राज्य वाले ओके. तो अभी मैं प्री ड्राफ्टिंग वाली स्टेज ले रहा हूं. पहले एक एक करके ले लेंगे आज इसको सारा. प्री ड्राफ्टिंग यहां से. तो प्री ड्राफ्टिंग में भी सबसे पहले हम लोग करते हैं प्लानिंग. प्री ड्राफ्टिंग में भी सबसे पहले आएगी. इसके भी स्टेप्स आएंगे ना, हर एक के अंदर क्या क्या स्टेप्स. तो प्री ड्राफ्टिंग दैट मींस बिफोर राइटिंग व्हाट वी डू, वी plan. So this is the essential step before writing, where we sort of define the purpose. Planning में simply क्या रहेगा? We define the purpose of our writing. Define the purpose of our. We should be clear about our writing, rather what topic we have to write, what thing we have to take up. Also, we need to keep in mind the audience for which we are writing. Audience or reader. The level of reader is understanding or their understanding. And then we also need to have facts or rough ideas that we need to present in our writing. So in planning, basically we make an outline, a mental outline about the purpose or the topic. We make an outline, or we need to have some clear or basic idea about the type of audience we might get, or the type of reader we are writing for, and also the facts and ideas we are going to write about. Because
because it is an academic. So it should be planned and ordered. The accuracy of facts and ideas needs to be confirmed. In planning, basically, or in ideas or factual ideas, if they are concerned, we basically check if any previous writing is available on these ideas or related to these facts. So that search of literature, we plan, we order, we make a simple mental outline of all the things that we are going to write. So this is all about the planning that we have, selection of topic, etc. Okay. Do the research. Second step is research. So first of all, we plan, we define, we select a topic, and then we also should have a clear idea about the audience or type of reader we shall address, and the facts and ideas that we need to represent. We also check the validity of these facts and ideas, and we do the necessary planning and arrange them in order. Now, second would be research. Research. Now, research means gathering information. It simply means gathering information about the topic that we selected in the previous step. So, planning, we selected some topic, and now we need to gather information about that topic, and that will happen through research. And research meaning you need to consult books, you need to consult other sources of information, and also we should understand and identify the gaps in our own understanding about it. तो वो गैप्स फिल करने होते हैं. माने कि सपोज करो मैंने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया कोविड-19, ठीक है जी. अब कोविड के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर देंगे, मल्टीपल सोर्सेज को कंसल्ट करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, इंटरनेट पे ढूंढेंगे, उसके बारे में डेटा इकट्ठा करेंगे, और डेटा कैसा होना चाहिए? फैक्चुअल, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ढूंढने की ट्राई करेंगे, ठीक है. और अपनी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि राइटर ने लिखने से पहले उसको भी तो पता होना चाहिए तो उन गैप्स को, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग में गैप्स हैं कोविड के रिलेटेड, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में गैप है, जो मुझे बेसिकली समझ नहीं है, उसको पहले मैं फिल करूंगा. माने उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा, अपने इंफॉर्मेशन टॉपिक के बारे में कंप्लीट. और इसमें कई तरह की चीजें कर सकते हैं आप. कंसल्ट, रिसर्च में बुक्स कंसल्ट की जा सकती हैं, आर्टिकल्स कंसल्ट किए जा सकते हैं. रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, माने कई तरह के सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, उनको हम गैदर करते हैं. इंटरनेट, यूट्यूब वीडियोस, ऑल दीज विल बी कंसल्टेड टू बिल्ड अप डेटा. रिसर्च, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम सारी चीजें कलेक्ट, इंफॉर्मेशन कलेक्ट. और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं रिसर्च के अंदर, प्री ड्राफ्टिंग की स्टेजेस है, हम लोग WH क्वेश्चंस पूछते हैं खुद से और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं. जैसे कोई भी चीज है उसके बारे में व्हाट, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में व्हेन, व्हाई, वेयर, और सबसे इंपॉर्टेंट हाउ. कैसे. और जब इनके जवाब ढूंढेंगे, जैसे कोरोना, मान लो मैंने कोविड-19 के बारे में जानना है, तो पहला सवाल होगा व्हाट इज कोविड-19, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन. When was it? When did it come into existence? Why did it come into existence? Where did it originate from? How does it affect other people? How does it basically
act on human beings, what are the consequences. So these basic questions, when we try to answer these questions about that topic, that will build our knowledge, that will make us sort of informed about that particular topic. और ये जो क्वेश्चन हैं ये जर्नलिस्ट जैसे पूछते हैं उस तरह के क्वेश्चन है, कब कहां क्यों कैसे वाले, पर रिसर्चर के लिए भी बड़े एसेंशियल क्वेश्चनिंग है. दीज बेसिकली कैन लीड अस इन राइट डायरेक्शन. किसी टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी है, दैट मींस वी शुड बी एबल टू आंसर दीज बेसिक क्वेश्चंस अबाउट दैट टॉपिक. जैसे सपोज करो अभी बात कर रहे हैं एकेडमिक राइटिंग, तो एकेडमिक राइटिंग के बारे में ये बेसिक क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए. जैसे व्हाट इज एकेडमिक राइटिंग, where do we use it, when do we use it, why do we need it, and how is it written. तो वही वाली क्लास है. तो माने टॉपिक जब आपने प्रेजेंट भी करना होता है तो ये बेसिक सवाल इनके जवाब आपको पहले पता होना चाहिए, वही राइटिंग के लिए आता है. फिर इसमें तीसरा स्टेप करेंगे, पहला हो गया प्लानिंग, दूसरा हो गया रिसर्च, तीसरा आ गया ब्रेनस्टॉर्मिंग. ब्रेनस्टॉर्मिंग, BRAIN. ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब बेसिकली रहता है व्हेन वी पूल आवर आइडियाज टुगेदर इन अ ग्रुप, है ना. मतलब मोर देन वन पर्सन इज बेसिकली लुकिंग फॉर दैट इंफॉर्मेशन ऑन दैट टॉपिक, ऑन पर्टिकुलर टॉपिक. So it is basically brainstorming means generation of new ideas. नए आइडियाज जनरेट करना, जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज ब्रेनस्टॉर्मिंग. और कहां से ये आइडियाज जनरेट करते हैं, कैसे करेंगे? तो बेसिकली जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज ये एक तरह की इनफॉर्मल एक्टिविटी है. और जो क्लासिकल ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी वो होती थी ग्रुपों में बैठ के. जैसे जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा है. ब्रेनस्टॉर्मिंग इन द सेंस दैट टू और मोर पीपल आर सिटिंग टुगेदर एंड दे आर डिस्कसिंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन. वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला है हमने स्किल किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला किया था, उसमें स्टेप्स किए थे 5 या 6 स्टेप्स हमारे आए थे. तो वो स्टेप्स जब हम ग्रुप में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं उन स्टेप्स को रिजल्ट कोई कंक्लूजन निकालने के लिए, देन वी आर एक्चुअली डूइंग ब्रेनस्टॉर्म. ठीक है. तो ब्रेनस्टॉर्मिंग माने व्हेन वी यूज रिसोर्सेज विद एन ओपन माइंड. में भी एक्टिविटी हो सकती है, टीम वर्क से भी रिलेटेड है, और इंडिविजुअली भी बंदा कर सकता है, सिंगल इंडिविजुअल, बट वो तब करेगा जब वो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को कंसल्ट करे. जैसे आपने एकेडमिक राइटिंग के बारे में मान लो कुछ बोलना, लेकिन उसको बोलने से पहले आप YouTube वीडियोस देखते हो, इंटरनेट सर्च करते हो, जाके किताबें फिर एक उसमें बनाते हो अपने पास रिटर्न. सो दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ ब्रेनस्टॉर्म. इट इज ऑलवेज डन विद, जैसे टीओ में हम लिसनिंग स्किल्स डेवलप करते हैं, ग्रुप डिस्कशन में हम दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं बोलने से पहले, इन द सेम वे ब्रेनस्टॉर्मिंग इज आल्सो डन विद ओपन, क्लोज होके मतलब नए आइडियाज को वेलकम करना है, सो दैट वी कैन हैव फर्दर इंफॉर्मेशन, नॉन जजमेंटल हो. और इसमें क्रिएटिविटी का भी रोल है. क्रिएटिविटी इन द सेंस कि आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज को हम वेलकम करते हैं. ब्रेनस्टॉर्मिंग मींस देयर कैन बी अ वेरी अनकन्वेंशनल सॉल्यूशन टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. अनकन्वेंशनल मतलब जो अब तक किसी ने सोचा नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स, रूल्स से थोड़ा हटके, कन्वेंशन से थोड़ा हटके. So we can also, because we are open-minded, so we can allow that creative element to permeate. And brainstorming, ये जो classical brainstorming है, this is done by the individuals, either singly or jointly, with all of them. पर जो हमारी ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग आजकल क्या हो गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग के सॉफ्टवेयर भी आ गए. मतलब कंप्यूटर बेस्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग. सो इट्स अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
that can be used to develop creative ideas. अब इसमें बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या क्या हम कर लेते हैं नए आइडियाज जनरेट करने के लिए। सपोज करो वी कैन यूज फ्लो चार्ट्स, क्योंकि इंफॉर्मेशन को नए एंगल से देखना होता है। डायग्राम्स, we can also use like maps, idea maps, and word association। अभी जो लेटेस्ट चल पड़ा है उसमें यूट्यूब वीडियोस या सिंपल वीडियोस, जरूरी नहीं है यूट्यूब के ऊपर ही है वीडियोस। और इसमें जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के सॉफ्टवेयर हैं उसमें कुछ कॉमन से नाम 2-3 मैं लिख देता हूं। सिंगल, पैरामाइंड, आइडिया फिशर, etc. So these are simple brainstorming solutions, softwares available that can be used to generate new ideas or they can be used to create. Basically computer और उसकी हेल्प ली जा सकती है in generation of new idea। मतलब नया आइडिया नहीं आ रहा है आप लोगों को कोई, so you can take the help of these। Because essentially क्या रहता है कि सॉफ्टवेयर में रिसोर्सेज कंबाइन करके दिए होते हैं और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज कर लेते हैं। नए आइडियाज, नए नए कॉम्बिनेशन, वर्ड एसोसिएशन, डायग्राम, फ्लो चार्ट या कुछ भी आपके आगे रखें। और जो ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग है उसमें मल्टी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। It's a teamwork, it's an example of teamwork and it's an informal method because there is interaction. It is highly creative method. तो essentially हमारे पास प्री ड्राफ्टिंग वाली स्टेज में तीसरा उसके ऊपर नए आइडियाज जनरेट कर दिए, यही किया ना, चीजें कर दी, इससे प्री ड्राफ्टिंग। अब रिसर्च के बारे में बात कर लेते हैं। प्लानिंग वाला तो मैंने बता दिया। तो रिसर्च जो है, रिसर्च का बेसिक डिजाइन कैसा, रिसर्च का बेसिक डिजाइन क्या होता है? एक तो रिसर्च के जो टूल्स पहले बता दिया कि उसमें बुक्स, आर्टिकल्स, जर्नल्स, पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ये सारे रहेंगे। इसमें इसेंशियली कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की क्या बाद में बनेगी, सबसे पहले होगा कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा से फिर बनेगी इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ डेटा सबसे एसेंशियल एलिमेंट है और वो सारे मेन आइडियाज आइडेंटिफाई करने होते हैं जो टॉपिक उसने, और उसके रिगार्डिंग फिर डेटा कलेक्ट। जैसे कि उसने वहां पर्पस वाले में जब हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की उससे पहले पर्पस डिफाइन किया फर्स्ट स्टेप में, तो पर्पस जो प्लानिंग के अंदर उसने डिफाइन किया, आप सपोज कर लेते हैं कि कोविड-19 से रिलेटेड उसको चाहिए, लेकिन कोविड से रिलेटेड बड़ा सारा डेटा ऑलरेडी बना हुआ है। तो जब उसने थोड़ा सा वो रिसर्च किया, बैकग्राउंड रिसर्च, तो उसको पता चला कि कोविड-19 से रिलेटेड तो काफी चीजें मार्केट में आ गई हैं, लोगों को पता है, लेकिन उसने कोई स्पेसिफिक उसमें ढूंढना है। जैसे कोविड-19 का इफेक्ट ढूंढता है वो, इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन चिल्ड्रन। सपोज करो 8 से 14 साल के बच्चों के ऊपर। अब उसने देखा कि इस चीज के ऊपर कोई किसी ने काम नहीं किया, यूनिक टॉपिक ढूंढेगा ना, ऐसे तो कॉपी पेस्ट ही हो जाएगा। तो उसने देखा कि कोविड-19 क्या इफेक्ट ढूंढना है और बच्चों के ऊपर 8 से 14 साल। तो ऑब्वियस है उसको इस टॉपिक के रिगार्डिंग रिसर्च के दौरान क्या कलेक्ट करना पड़ेगा, डेटा। 8 से 14 साल के बच्चों के ऊपर रिसर्च
करनी पड़ेगी, मिलना पड़ेगा, बच्चों के घर जाना पड़ेगा, एक सैंपल बनाना पड़ेगा, उनके लिए क्वेश्चनेयर बनाना पड़ेगा। क्वेश्चनेयर का मतलब होता है सेट ऑफ क्वेश्चन, इंटरव्यू फॉर्म रिटर्न, है ना, उनसे बातें करनी पड़ेगी, उन सारे के आंसर्स को वो कंपेयर करके उसका इफेक्ट निकाल पाएंगे, है ना। रिसर्च माने इस तरह की बात है, शोध में ये है। ऐसी बात है कि रिसर्च का ये टाइटल वाइटल है, इसलिए प्लानिंग में डिसाइड करनी, फिर इससे रिलेटेड जब वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी फिर उसको एनालाइज करके वो तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करेंगे पहले, कोविड-19 इफेक्ट, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देगी एक चैप्टर में, फिर दूसरे चैप्टर में इफेक्ट की, तीसरे चैप्टर में या तीसरे सेक्शन में इफेक्ट इन बच्चों के ऊपर बात करेंगे 8 से 14 साल, ऐसे रिसर्च बनेगा। बेसिकली इसका रिसर्च का रिजल्ट लिख लेगा, रिसर्च में या कोई डिसर्टेशन बनाएगी या कोई शोध पत्र बनाएगी या पूरा ग्रंथ लिख देगी, थीसिस लिख देगी, अपने आइडिया समझ रहे हैं बात, है ना। तो रिसर्च में बेसिकली हम लोग ये चीजें करते हैं, मतलब पैटर्न करते हैं। नॉर्मली रिसर्च देखो वर्ड ही 2 शब्दों से मिलकर बना है, रिसर्च, तो सर्च का मतलब होता है ढूंढना, रिसर्च का मतलब है दोबारा ढूंढना। दोबारा ढूंढने से भाव ये है कि उस सर्च को किसी पर्टिकुलर एंगल से करेंगे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। जैसे कोविड-19 जो एग्जांपल दिया है, इसमें रिसर्च किस एंगल से हो रही है, बच्चों के ऊपर उसका प्रभाव ढूंढ रहे हैं, और बच्चे कौन से हैं, 8 से 14, है ना। तो रिसर्च माने कि जो डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है उसमें फिर दोबारा से नए सिरे से उसको एनालाइज, और इसमें नॉर्मली जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च होती है उसमें कई बार जो प्रॉब्लम दी होती है या कोई रिजल्ट सामने आ रहा होता है, अब देखो तो साइंटिफिक मेथड की भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि साइंस की रिसर्च कैसी है। जैसे मान लो हमने पहले उसमें क्या होता है कि कोई ना कोई चीज हमें दिख रही है, जैसे सपोज कर लेते हैं हमें ये दिख रहा है कि जो काला कलर है, ब्लैक कलर जो है वो सबसे ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है। जैसे लाइट बढ़ती है तो सफेद रंग सबसे देर गर्म होता है, काला कलर सबसे जल्दी गर्म होता है। तो मतलब पहले हमारे पास कोई चीज आ गई, हमें कुछ दिख रहा है, कोई ऑब्जर्व किया हुआ फिनोमेना, ठीक है। अब उसके रिगार्डिंग बनाएंगे हाइपोथेसिस। क्या बनाएंगे, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कोई थ्योरेटिकल स्टेटमेंट। क्या हो गया, थोड़ी देर बाद आ सकते हो। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब है कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, माने कि काला रंग सबसे जल्दी गर्म होता है, उसके रिगार्डिंग मैंने कोई थ्योरी बनाई, ऐसे अभी जनरल गेस वर्क है मेरा। तो मैंने गेस किया कि काला रंग इसलिए गर्म हो जाता है क्योंकि काले रंग के अंदर सपोज कर लेते हैं कि वो बड़ा डेंस होता है, ठीक है, और वो सबसे ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है, कि सबसे ज्यादा गर्मी एब्जॉर्ब कर लेता है। मान लो ये मैंने एक थ्योरी बना, ऐसे आइडिया। हाइपोथेसिस का मतलब है अ थियोरेटिकल आइडिया और गेस, कैलकुलेटेड गेस होता है। साइंस वालों ने देखा कि यार ये पौधे जो है वो सर्दी में रात को सो जाते हैं, उसने देख लिया, फिर उसने उसके रिगार्डिंग क्या बनाया, एक हाइपोथेसिस बन गया। अब उस हाइपोथेसिस को क्या करना पड़ेगा, वैलिडेट। वैलिडेट करने का क्या मतलब है, उसको चेक करना पड़ेगा लैब में। लैब में कैसे चेक करेगा, पहले एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करेगा, जिस एक्सपेरिमेंट में ये हाइपोथेसिस चेक हो सके, फिर उसके रिजल्ट पब्लिश कर दे। जैसे साइंस वाले नॉर्मली आपने देखे होंगे, लंच में तो अभी साइंस नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे बच्चे नगरोटा में करते रहते हैं, कुछ ना कुछ इधर लगे रहते हैं, फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो पहले वो रीडिंग ले रहे हैं, उससे एक्सपेरिमेंट डिजाइन हुआ है, उससे वो रीडिंग लेते हैं, कुछ डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर उस डेटा के लेवल पे उसके बेसिस पे रिजल्ट देगा। आर्ट्स वाले लोग, हम लोग ऐसे करते हैं कि हम लोगों ने रिसर्च का टॉपिक डिफाइन कर दिया पहले, फिर उसके रिगार्डिंग हमने बनाना है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का यहां सिंपल मतलब ये है कि इस इफेक्ट को, इसके इफेक्ट को हम लोग स्टडी करते हैं। स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो मेरा दिमाग में ये आएगा कि सेट ऑफ क्वेश्चन बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है वो क्वालिटी के शेप में है, क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटी नहीं है, संख्याएं नहीं है, आंकड़े नहीं है, यहाँ है अभी क्वालिटी, मात्रा, गुण। तो उसको चेक करने के लिए मैं कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन बनाऊंगा या कोई मैं पैरामीटर डिफाइन करूंगा कि मैं कैसे पता करूं कि ये इफेक्ट क्या निकला है।
तो उसके लिए पहला क्वेश्चन मुझे बच्चे से पूछना पड़ेगा कि क्या आपको रात को नींद अच्छी आती है, क्या आपको एग्जाम से डर लगता है, क्या आपको पढ़ाई की चिंता होती है। अब जो बच्चा मुझे रिजल्ट देगा 8 से 14 तक, सपोज करो मेरे पास 100 बच्चे हैं, तो मेरे पास 100 तरह के जवाब आएंगे उसके बाद, है ना। एक ने बोला होगा हाँ जी डर लगता है, एक ने बोला नहीं मुझे पता ही नहीं है क्या, अलग अलग तरह के जवाब आएंगे। फिर उसके डेटा, उसके बेसिस पे मैं निकालूंगा कंक्लूजन कि कितने परसेंट बच्चे हैं जो बेसिकली एग्जाम से कर रहे हैं, कितने परसेंट बच्चे हैं जो रात में टेंशन करते हैं, उससे निकलेगा ना एक ठीक है। अच्छा, तो हम लोग कर रहे हैं अभी एकेडमिक राइटिंग वाले में प्रोसेस ऑफ एकेडमिक राइटिंग, और प्रोसेस ऑफ एकेडमिक राइटिंग में हम लोग कर रहे हैं ऑफ एकेडमिक, और स्टेप्स वाले में तुम लोग भाग के आए बस नहीं आए, फिर आए कैसे? चलो सांस टाइम कैसे होने वाला। लंच वाले बच्चे ऑडिबल रहा मैं कनेक्शन, अरे कनेक्शन तो नहीं करना ऑडिबल। चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चन है आई आर QUESTIO AARE। क्वेश्चनर का मतलब होता है प्रश्नों की एक श्रृंखला, सेट ऑफ क्वेश्चन। वो सेट ऑफ क्वेश्चन जो हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग डिवाइस करेंगे, क्राफ्ट करेंगे, डिजाइन होता है। जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट डिजाइन होगा वैलिडेट बना करने के लिए, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी क्वेश्चनियर डिजाइन। ये क्वेश्चनियर ओरल भी हो सकता है कि आपने इंटरव्यू डायरेक्ट कर लिया, आपने एक कॉपी ली, हर एक से एक ही सवाल पूछते गए। जैसे हमारे यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि सर्वे वाले आते हैं, आने वाले यहाँ भी सर्वे करते हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन लिया होता है, हर एक से एक ऐसे सवाल पूछते हैं। आपके घर में कितनी मोटरसाइकिल है, कितनी, आपके घर में कितनी कार है, कितनी, आपके घर में कितने पैसे हैं, हर एक से वही सेट पूछे। फिर उसके बेसिस पे सोशियो इकोनॉमिक डेटा बनता है, फिर बाद में उसको एनालाइज कर लेते हैं। तो माने उन्होंने क्वेश्चंस पहले डिफाइन कर दिए, या क्या होगा क्वेश्चनियर, जैसे मैंने भी लिखा आपको बोलने को, अभी मैम रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने क्वेश्चन दिया सर आपको सुना, उन्होंने कॉमर्स वालों को दिया। उसमें क्या था क्वेश्चनियर में, क्वेश्चन आंसर थे, उसमें सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन थी विमेन की, रूरल विमेन। तो उसमें उन्होंने सेट ऑफ क्वेश्चन बनाए हुए थे, हर एक से पूछ रहे थे आपका बैंक में अकाउंट है या कोई सरकारी योजना के बारे में आप जानते हैं। तो डेटा को कलेक्ट करेंगे आप 30-35 क्वेश्चन, और उन 30-35 क्वेश्चन पे जो डेटा आप सप्लाई करोगे वो बन जाएगा उनका रिसर्च का बेसिस। उसके बेसिस पे उसको एनालाइज करके फिर वो निकालेंगे रिजल्ट, क्रिटिकल राइटिंग, एनालिटिकल राइटिंग, वो है ठीक होगा। और इसमें एक चीज होती है सैंपलिंग। सैंपलिंग का मतलब है ये सबसे पॉपुलर मेथड है डेटा कलेक्ट करने के लिए, और इसमें प्रोसेस में, और इसमें जो सैंपल हम लोग कलेक्ट करते हैं, सैंपल का मतलब जैसे यहाँ वाले में मैं बात कर रहा था कि इफेक्ट ढूंढना है कोविड-19 का बच्चों के ऊपर जो 8 से 14 साल के बीच, ये हमारा टॉपिक था। अब 8 से 14 साल के बच्चों के ऊपर मैंने अगर रिसर्च करनी है, तो दुनिया में तो 8 से 14 साल के बीच में करोड़ों बच्चे हैं, तो मैं करोड़ों से सवाल पूछ सकता हूँ जाके, नॉट पॉसिबल। तो मैं क्या करूंगा, एक या तो टॉपिक अपना लिमिट कर लूंगा, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट का मतलब इफेक्ट ढूंढा कोविड-19 का 8 से 14 साल के बच्चे कहां पे, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बहुत बड़ा है, तहसील नगरोटा बहुत बड़ा है, 2 गांव के नाम लिख दिए सब इसी में ढूंढना, ठीक है। या तो मैं टॉपिक का ही अपना जो दायरा है उसकी बाउंड्री है छोटी कर दूंगा, या मान लो मैंने डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में मैं ढूंढना है तो मैं सैंपल साइज सेलेक्ट करूंगा कि मुझे कितना की डेटा चाहिए ताकि एवरेज सबके आंसर्स आ जाए। तो हो सकता है मुझे मेजर स्कूल्स विजिट करने पड़े जहां 8 से 14 साल के बच्चे मिल जाएंगे, इंस्टीट्यूशन में नॉर्मली मिल जाएंगे, वहां जाके सारे बच्चों को मैं क्वेश्चन बांटूंगा, क्वेश्चंस का सेट मैंने बनाया होगा उनको बांटूंगा, या गूगल फॉर्म दे दूंगा, या मैं उनको इंटरव्यू करूंगा क्लास में।
सबको बिठा लिया 20-20 बच्चों का ग्रुप या 30-30 बच्चों का ग्रुप, हर एक बच्चे से क्या ले लिए, आंसर्स ले लिए, डेटा कलेक्ट हो जाएगा। तो सैंपल डिफाइन करते हैं, सारे बच्चों से बात नहीं हो सकती हिमाचल के या भारत के, हम क्या करेंगे सैंपल साइज 100, 150, 200, 400, 800, 100, 1000 इतना सैंपलिंग करेंगे, ठीक है जी। और उस सैंपल के बेसिस पे रिक्वायर्ड डेटा कलेक्ट करेंगे। तो रिसर्च भी ये मतलब एक स्पेशल केस हो गया आपके लिए कि प्री ड्राफ्टिंग में रिसर्च करनी है, सेकंड स्टेप था। रिसर्च जो है वो पार्ट है एकेडमिक राइटिंग का, तो उसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे, क्वेश्चन बना के, क्वेश्चन बना के, इंटरव्यू पूछ के, सर्वे करके, बेसिकली ये सर्वे। आर्ट्स में जो रिसर्च हो रही है, जो साइंस में रिसर्च हो रही है, उसमें मैंने आपको बोला कि उसमें कोई जो ऑब्जर्वेबल फिनोमेना या ऑब्जर्व्ड जो कोई इफेक्ट है उसको स्टडी करने के लिए हाइपोथेसिस देते हैं, उसको वैलिडेट, ठीक है। कोई पहले आपको चीज दिखी होती हुई, जैसे आपको दिखा कि जैसे सीजन्स चेंज होते हैं धरती पे, सर्दी गर्मी बरसात आते रहते हैं, क्यों, तो उसके रिगार्डिंग पहले दिया गया हाइपोथेसिस, कोई आइडिया दिया गया कि गेस लगाया गया कि ये जी इस कारण से होता है, फिर उस गेस को वैलिडेट किया गया, माने ये ढूंढा गया लैब में जाके, कोई एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया कि क्या सच में ये साबित होती है बात। अगर साबित हो जाती है तो दैट मींस हाइपोथेसिस करेक्ट है, यानी कि वो एक्सप्लेनेशन सही है। साबित नहीं होती तो हाइपोथेसिस गलत है, नया हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस भी एक तरह से क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो अल्टरनेट है वही हाइपोथेसिस, समझ रहे हैं। इसका प्लूरल होगा तो ईएस कर देंगे, सिंगुलर होगा तो हाइपोथेसिस, थीसिस है ना, एससीएस प्रोनाउंसिएशन होगा इससे। तो प्री ड्राफ्टिंग की स्टेज में हमारे पास जो चीजें आई, उनमें क्या क्या आ गया, 4 बेसिक स्टेप आ गए, प्लानिंग, रिसर्च और क्या था, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग, अच्छा 3 स्टेप आ गए वहां पे। और यहाँ पे जो रिसर्च है उसका मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया कि रिसर्च स्टैंड अलोन एक्टिविटी भी है, अलग से भी शोध करते हैं, तब क्या स्टेप लगाना है। तो अलग से जब शोध करते हैं तो उसमें पहले तो प्रॉब्लम डिफाइन कर लेते हैं, जो रिसर्च करेंगे प्रॉब्लम डिफाइन कर लेंगे, उससे रिगार्डिंग हाइपोथेसिस करेंगे, हम एक गेसवर्क लगाएंगे कि क्या चीज हो सकती है, और फिर रिसर्च का डिजाइन बनाएंगे, लिटरेचर का सर्वे करेंगे, फिर सैंपल साइज रिजेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे प्रोजेक्ट को, फिर डेटा एनालाइज करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे और उसका राइट अप या कंक्लूजन, ठीक। और सिंपल रिसर्च में हमने जो प्री ड्राफ्टिंग वाले में बात की, उसमें हम बुक्स, आर्टिकल्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, यूट्यूब वीडियोस है, जो भी हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डेटा है, उनको कंसल्ट करेंगे अपने टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने। और बेसिकली रिसर्च के अंदर हम WH क्वेश्चन से जितने भी सवाल पूछे जाते हैं उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल आप कल प्रेजेंट करने वाले मान लो डार्क रूम के बारे में, मान लेते हैं आपको ये टॉपिक मिल गया, तो इसके बारे में सारे सवालों के जवाब आपको पता होंगे, तभी आप प्रेजेंट कर पाओगे। टॉपिक कोई भी, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, है क्या है, इसके बारे में है, बेसिकली क्या होता है, आर.के. नारायण कौन है, तो इसके बारे में जितने भी सवाल हैं वो उनके आंसर आपको पता होना चाहिए बिफोर यू कम टू द पोडियम टू प्रेजेंट, समझ रहे हैं। ऐसे ही हम कोई रिसर्च आर्टिकल लिखने की शुरुआत करते हैं या लिखना है या रिसर्च करनी है उसके बारे में, तो बेसिकली हम इन्हीं सवालों के जवाब उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ढूंढ रहे हैं। सपोज कर लेते हैं कोविड, तो कोविड के बारे में आपको सारा पता होना चाहिए बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट स्पीकिंग विद समबडी, कब, कहां, क्यों, कैसे, है ना, व्हाट, व्हाई, व्हेन अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक कोई भी। तो जब भी आपने स्टेज पे आना बोलने के लिए कोई भी टॉपिक लेके, तो आपको उसके बारे में बेसिक सवालों के जवाब आने चाहिए। ये नहीं कि आप रट्टा लगा के आ गए हो, समझ के आना है कि है क्या चीज, है ना। जैसे कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में बोलना है, सपोज करो यहाँ आके, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस, हाउ डज इट ऑपरेट, व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स, व्हाट डज ईच एलिमेंट रिप्रेजेंट, what are मतलब some sort of examples to sort of support your ideas or theory, तो ऐसे करते हैं। वही हम रिसर्च में करते हैं, प्री ड्राफ्टिंग स्टेजेस में ये काम होते हैं।
ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है कि जब किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में इनफॉर्मली बैठ के ग्रुप में डिस्कशन की जाती है, ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग, चार लोग मिलके एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स लगा रहे हैं, अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, अप्लाई करके देख रहे हैं, दैट बिकम्स ब्रेनस्टॉर्म। मतलब दिमाग बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं टू जनरेट न्यू आइडियाज। बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग इज जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज, क्रिएटिव एक्टिविटी। और क्रिएटिविटी को बूस्ट करने के लिए हम लोग कई तरह के अदर सोर्सेज भी कंसल्ट करते हैं। ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो इंडिविजुअल भी कर सकता है मल्टीपल सोर्सेज को कंसल्ट करके, या ग्रुप में बैठ के मल्टीपल इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर भी डिस्कस करके वो चीज कर सकते हैं। जो कंप्यूटर वाली ब्रेनस्टॉर्मिंग में मैंने कुछ सॉफ्टवेयर के नाम दे दिए हैं, तो उन सॉफ्टवेयर में भी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। माने कि नए आइडियाज को, क्रिएटिविटी, नए आइडिया सजेस्ट कर सकता है आपको प्रोग्राम, और उसमें आप फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, फिर आइडिया के चार्ट्स या पिक्चर्स या वीडियोस, ये चीजें आपको, मतलब वो बेसिकली नई एसोसिएशंस बना के देगा आपको नया आइडिया जनरेट करेगा सॉफ्टवेयर के साथ। बाकी बुक में बड़ा अच्छा दिया हुआ है। नॉर्मली इसने एक आइडिया से रिलेटेड कुछ सवाल उठाए हुए हैं, हाउ शुड बी कोऑर्डिनेट, what should be the idea, or what should be the effect, how should we focus, ये सारे क्वेश्चंस पूछे। तो ग्रुप में जब लोग कर रहे हैं, बेसिकली दो तरह की होगी ना ब्रेनस्टॉर्मिंग, जब बंदा खुद रिसर्च कर रहा है मल्टीपल सोर्सेज से, ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग में ग्रुप डिस्कशन इज गोइंग ऑन पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक, इनफॉर्मल है, ओपन माइंड के साथ की जाती है। वही सारी चीजें, लिसनिंग स्किल होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, सुनना, वही चीजें इसमें भी आ जाती है। और एडवांस्ड वाले मैंने बोल दिया कि इसमें क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं या क्रिएटिव थिंकिंग के टूल्स यूज कर सकते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग का सिंपल मतलब होता है आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज। आउट ऑफ बॉक्स का मतलब होता है समथिंग एक्सपेरिमेंटल, ट्राई समथिंग न्यू, ट्रेडिशनल से हटके, अनकन्वेंशनल आइडिया। और इसमें हम अपने करंट वेज ऑफ थिंकिंग को चैलेंज करते हैं, अभी प्रेजेंटली हमारी थिंकिंग का तरीका है उसको चैलेंज करते हैं।